Hello friends, last time we have solved some example from additional exercise as a 12.11, 12 and 13. Now from 14, just read out the question for the 14. अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जितना क्वेश्चन लोगे तब उसके अंदर पूरी डिटेल होगी। जितना क्वेश्चन शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो डिटेल है वो हमें सोचनी है। Whenever the question is too much long, then all the details are given inside of the question. Then read it out the question carefully. The meaning of the question is our interest to calculate radius of the orbit. Then first A given as a construct a quantity with dimensions of length from fundamental constant of E, mass of the electron and speed of the light, and determine its numerical value. First of all, we have to derive the dimension length as a dimensions. Then whenever in case of atom, whenever electron is revolving around the nucleus, we know that the force is exerted, that is centripetal force, and this centripetal force is balanced by Coulombian force. Then if we say the Coulombian force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that also we can write K, and Z is square upon R as a K Q1 Q2 upon R, we can say K, and for the hydrogen atom we can say Z is equal to 1, then K is square upon R square. We can write for hydrogen atom Z is equal to 1. Then अगर आप ऐसा करें कि फोर्स इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलेंगे वर्क एज ए एनर्जी, दैट इक्वेशन इज के स्क्वायर अपॉन आर. बट वी कैन से एनर्जी वर्क, अदरवाइज एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड equation for the energy one more we can say according to the Einstein's equation, E is equal to mc square. In place of F into R we can use mc square. Therefore mc square is equal to K square upon R. Therefore about R we can say K square upon mc square. Now our interest initially in dimension. Then dimension of the R we can say it measured in meter. That's why it is L. लेकिन यहाँ पर इससे हमने इसका डायमेंशन प्रूफ करना है कि which is L1 meter as its unit. Then now we can say dimension of R. So for the dimension of R, just remember the dimension of K. The dimension of K, उसके लिए उसका यूनिट सोचो पहले. Then unit of the K is Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तब अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट के हिसाब से लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू E स्क्वायर मीन्स कूलम स्क्वायर, नीचे मास एज ए kg, and c square we can say meter square per second square. Then coulomb square will be cancelled, meter square also cancelled. Then just replace Newton. We can say Newton means kg meter per second square. Then meter cancel, coulomb square cancel, एक यहाँ पर second square बचा, नीचे kg. Then we can say for meter then its dimension is L1.
तो यहाँ से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं और R है इसलिए हम डायमेंशन L1 लिख सकते हैं। बट इट इज आस्क्ड टू प्रूव यूजिंग डायमेंशन ऑफ E, M and C, जस्ट प्रूफ इट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये सभी की हमें वैल्यूज रखनी है, k स्क्वायर अपॉन m c स्क्वायर। Just use the value of k 9 10 to the power 9, value of e 1.6 10 to the power minus 19 whole square, m mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 and speed of light 3 into 10 raised to 8 whole square। इसकी कैलकुलेशन करो और इसका आंसर कुछ नियर अबाउट मिलेगा हमें 2.8 10 to the power minus 15 meter, which is very small compared to the radius of the atom। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट में सोचें कि एक्चुअली हमें रेडियस ऑफ द एटम चाहिए, देन यूजिंग बोर मॉडल equation for the radius is n square h square epsilon naught upon pi z square m। अगर हम बोले कि फॉर हाइड्रोजन एटम z is equal to 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n is equal to 1, then r is h square epsilon naught upon pi square m। Just use the value of h, epsilon naught, pi, e and m और do the necessary calculation। तब हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मिलेगी हमें 0.53 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो है वो ऑलवेज याद करके रखो कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। also we can say it is 0.53 एंगस्ट्रॉम। और ये याद रखो जिसका हमें आगे बहुत बार यूज करना है, एमसीक्यू में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीपल में कहीं पर भी आया, जैसे हमने इसके आगे के एग्जाम्पल में कर रखा है कि एक्सरसाइज का एक है जिसमें हमने रेडियस की फर्स्ट ऑर्बिट की उस हिसाब से सेकंड थर्ड करनी है, तो वी कैन से n स्क्वायर r1 डायरेक्टली। ऐसे वेलोसिटी का था v1/n और ऐसा टाइम पीरियड का हमने किया था n³ t1 यूजिंग v and r। तो इसको ऐसे लर्न करके रखो कि दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द एटम। नाउ number 15। In number 15, just read it out the question कि total energy of the first excited state of the hydrogen atom is given as a -3.4 electron volt and asks about what is the kinetic energy of the electron, potential energy of the electron and which of the answer above would if we change the zero potential energy। That means for the number 15 initially given total energy in the first excited state। अब total energy in the first excited state given as a -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर नहीं दी है तो भी हम एनर्जी की इक्वेशन से कर सकते हैं कि -13.6 upon n square electron volt, this is the general equation। Now for the first excited state we can say n is equal to 2, then for first excited state energy for second it is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट लिखो तो भी चले और ये तो गिवन है।
कि पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये गिवन है। अगर नहीं है, ओनली फॉर फर्स्ट एक्साइटेड लिखा है, तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें कि टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज गिवन। Ask about what about its kinetic energy, then we know that कि जो भी हमारी टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक होगी, बट एज ए नेगेटिव के टर्म्स में। तब बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट K इज इक्वल टू -P। जितनी काइनेटिक उतनी ही टोटल एज ए नेगेटिव, जितनी ऐसे टोटल उतनी ही काइनेटिक एज ए नेगेटिव, मतलब K इज इक्वल टू -E। अब E इज ऑलरेडी एज ए माइनस है, इसलिए बोलेंगे इट इज प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देन आस्क अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम कि जितनी भी काइनेटिक है उतनी पोटेंशियल बट नेगेटिव। वी कैन से इट इज -2k। देयरफॉर फॉर -2k इट इज माइनस, इसका डबल बोल देंगे तो 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसका जीरो लेवल की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो जीरो लेवल अगर हम चेंज करें तो क्या होगा। इफ वी कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो लेवल, मतलब अवर रेफरेंस लेवल इज जीरो, देन देयर विल बी नो चेंज इन टोटल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। बट इफ द reference level of the potential energy change, then kinetic energy and potential energy also will be changed। तो आंसर में हमें क्या लिखना है for the C? We can say if the reference level of the potential energy is zero, then no change in kinetic energy and potential energy। But if reference level मतलब zero level of the potential energy is changed, then kinetic energy and total energy will be changed। अब अगर हम सोचे 12.16 से रिलेटेड, तब क्वेश्चन पढ़ लो कि बोर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, इट शुड बी इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन आल्सो। व्हाई देन वी never speak of quantization of orbit of planets around the sun। जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, तो क्वांटाइजेशन हमने बोल दिया, और इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, दैट इज nh/2π। अब वही अगर हम प्लैनेटरी मोशन के लिए अप्लाई करें, तो प्लैनेटरी मोशन के लिए हम क्वांटाइजेशन जैसा वर्ड यूज क्यों नहीं करते। देन एंगुलर मोमेंटम m is equal to we can say इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये कोई भी ऐसे ऑर्बिट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सही है, लेकिन अगर हम एज ए प्लैनेटरी मोशन के लिए सोचे, तब आगे भी हमने क्वेश्चन में बोल रखा है इट्स एंगुलर मोमेंटम जो है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻70 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू जितना होगा, और ये जो है वो बहुत लार्ज है फॉर द प्लैनेटरी मोशन, पर्टिकुलरली फॉर द अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अगर अर्थ के लिए बोले तो ये जो वैल्यू है वो 10⁻70 टाइम्स, मतलब जो नंबर मिलेगा वो 10⁻70 टाइम्स मिलता है। अब अगर 10⁻70 टाइम्स है तो देखो कि वो जो ऐसे ऑर्बिट लेवल है वो सन से कितनी दूर होगी, या फिर ऑर्बिट से सोचो, मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में सोचो तो वो कितनी दूर होगी, और जितनी दूर है उतनी उसकी एनर्जी भी बहुत कम होगी, और जितनी ऑर्बिट दूर है
तब बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी इज कांस्टेंट, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड फॉर्म। क्वांटाइज्ड फॉर्म कब आएगा? जब ये जो भी ऑर्बिटल नंबर है वो ऐसे लिमिटेड नंबर, मतलब नियरर ऑर्बिट्स के लिए, हायर ऑर्बिट्स के लिए तो हम बोलते हैं कि दिस एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी कांस्टेंट है मतलब एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट। तो जब ऐसा एनर्जी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तब नो नीड ऑफ क्वांटाइजेशन। और इसीलिए बोलेंगे 10⁻70 टाइम्स इसकी वैल्यू मिल रही है। इसीलिए एनर्जी एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट फॉर द प्लैनेटरी मोशन। That's why we are not using the word quantization for the planetary motion. Now about 17. अब जो 17 है, question is obtain the first Bohr radius and the ground state energy of muonic hydrogen atom, which is negatively charged muon of mass 207 times of mass of electron, या फिर 207 times mass of electron orbit around the proton दे रखा है। मतलब हमें एक बोला है म्यूनिक हाइड्रोजन। तो म्यूनिक हाइड्रोजन मतलब वो नेगेटिवली चार्ज म्यून है और जिसका मास है 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोल दें कि यहाँ पर हमें मास ऑफ म्यू1 दे रखा है, दैट इज 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हमें इसका एज ए रेडियस भी चाहिए और उसकी एनर्जी भी चाहिए। देन वी नो द जनरल इक्वेशन फॉर द रेडियस। अगर हम लिखें यहाँ पर कि फॉर रेडियस, then general equation is R is equal to n square epsilon naught upon pi z square m। अब यहाँ पर वैसे n की जो भी वैल्यू ले लें पर्टिकुलर, z तो हाइड्रोजन के लिए 1 है कि for H atom z is equal to 1, therefore R we can say is inversely proportional to the mass. Therefore, अगर हमें म्यू1 की रेडियस चाहिए, then we can say R mu upon R e, इलेक्ट्रॉन की रेडियस है। Therefore, we can say inversely proportional इसलिए mass of electron and mass of म्यू1। Therefore, R mu is equal to me, mass of muon is 207 times of mass of electron into Re। तो कैंसल, और जो भी हमने रेडियस बोला हुआ है तो वो हमने अभी बोला कि वो याद रखो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट इट इज 0.53 10 to the power -10 upon 207। कि फॉर फर्स्ट के लिए डायरेक्ट लिखो, तब इसका कैलकुलेशन करो तो कुछ आंसर मिलेगा इसका 2.56 10 to the power -13 मीटर। ऐसे ही करना है हमें टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो भी इक्वेशन है इस माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो 1, देन e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n square h square, then we can say it is proportional to the mass, then total energy is proportional to the mass। then अगर हमें इसी की एनर्जी करनी है तो बोलेंगे मास ऑफ म्यून बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज 207। therefore E mu is 207 and total energy of the electron, and total energy of the electron is -13.6। therefore 207 into -13.6 electron
वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ द म्यू1 आएगा -2.81 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द म्यू1। तो बस जो रेडियस की इक्वेशन है उसकी जनरल इक्वेशन और एनर्जी की जनरल इक्वेशन याद करो, हमें रेडियस ऑफ म्यू1 और एनर्जी ऑफ म्यू1 मिल सकता है। ये यहाँ पर सभी एग्जांपल्स विद एडिशनल एक्सरसाइज इस चैप्टर के खत्म हुए।